Good morning, students. Amrendra Kumar, science teacher, halwasiya Vidya Vihar. Today, revision classes. Revision chapter 5, the fundamental unit of life. Fundamental unit of life, that is cell. इस चैप्टर को हम किस नाम से जानते हैं? सेल चैप्टर के नाम से जानते हैं. बिकॉज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ इज सेल, बिकॉज लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सेल. सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665. Robert Hooke examined a slice of cork cell with the help of a self-made microscope and observes the cork cell that is resemble to the honeycomb, that is like a compartment and tiny little rooms. And in a Greek words, little room is known as cell, so it is known as a cell. Cell in a practical के अंदर हम क्या करते हैं? सेपरेटिंग यूज करेंगे और ओनियन पील को ऑब्जर्व करते हैं. एंड देन ऑब्टेन्स द 3 पार्ट्स, दैट इज outer shell wall, cell membrane or cell wall, nucleus and large size vacuoles. In an animal cell, observes the 3 parts, plasma membrane, that is outer covering parts, and the nucleus in a center and the cytoplasm are present. Clear? Plant cell having the fixed shape, but animal cell having the different shape. Animal cells having different cells. And the discovery आपको living cells are discovered by Leon Hall by the using the improved microscope in 1674. Nucleus of a cell that is discovered by Robert Brown in 1831, and then the further Genge that gives the protoplasm, crude parts of a cell, and then Sheldon and Sivan gives a cell theory. And the cell theory, first point, 2 points, minimum 2 points. Remember 2 points. Cell is the structural and functional unit of a all life form. सभी लाइफ के लिए क्या है? Structural and functional unit. And second, cells are arises from the pre-existing cells. And cells is complex in a structure. Cell के structure क्या है? Complex हैं. That consists the many organelle, and that organelle performs the functions, different functions. And inside the cells, the protoplasm is fluid-like medium and fluid-like material that presents in a cells. That is called protoplasm. It is also necessary for survival of a life. Clear? In an animal cell, different shape of a cells, and it depends on the parts in which the cells are present. उसके ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किस पार्ट का सेल है. तो हम डिफरेंट शेप के सेल्स को, जैसे हमारा दिया हुआ है स्मूथ मसल सेल्स हैं, उसका स्पाइंडल शेप हो गया. ये हमारे ब्लड हैं, ये कॉनकेव बाइकॉनकेव हो जाएंगे. नर्व सेल्स हैं, इसके स्टार लाइक आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा. ओवम है,
एग, जो ओवम आपका हो गया, बोन सेल्स हैं, इनकी आपको डिफरेंट शेप्स हैं और ये डिपेंड किस पर करता है, उसके ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिज्म आपको होते हैं 2 टाइप्स ब्रॉडली। एक तो होता है यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि सिंगल सेल परफॉर्म्स द ऑल फंक्शंस, दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल हैं कौन सा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आपको एग्जाम्पल हैं किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। और आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी मेनी सेल्स and the cells are combined, form tissue, organ systems and division of a liver, that is, and performs the different functions with the help of a different cells, and that is multicellular organism. अब human being है और other animals हैं, bigger plants हैं, that is the example of multicellular organism. All cells are arises from the pre-existing cells or single cells. All cells are arises from the single cells. Means अब आपको इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपको जाइगोट इज द फर्स्ट सेल और उसी जाइगोट से आपको कंप्लीट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप डेवलप होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में आपको ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल को हमने क्या कहा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ऑल लाइफ फॉर्म्स। जितने ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लिए ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, ईच लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म द सर्टेन बेसिक फंक्शंस। ये बेसिक फंक्शंस क्या होंगे, दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ए लाइफ एंड ईच सेल्स हैविंग एबिलिटी टू परफॉर्म द सच फंक्शंस लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, इनके अंदर डिवीजन ऑफ ए लेबर है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं दैट परफॉर्म्स द डिफरेंट फंक्शन। अब ये फंक्शन आपको है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रिएशन है, दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ए लाइफ। अब ईच सेल के अंदर आपको प्रेजेंट्स होते हैं जो टाइनी ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज ए ऑर्गेनली। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली, एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शंस एंड परफॉर्म्स release energy, synthesis of a substances, removal of a waste material. All functions are occurs by the organelle presence in a cell. So it is known as a structural and functional unit of a life. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। तो ये हो गया बेसिक यूनिट, और सेल कंबाइन होकर के ही ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल क्या हो गया, ऑल फंक्शंस दैट इज बेसिक फंक्शन दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ए लाइफ दैट अकर्स बाय द सेल, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ऑल लाइफ फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट सेल मेड अप ऑफ। इसमें हमने क्या बताया, 3 पार्ट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी सेल के अंदर ये 3 पार्ट्स होंगे जिसको हम आसानी से देख करके बता सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा और इसके साथ साइटोप्लाज्म होंगे जिनको हम इजीली ऑब्जर्व करते हैं। और ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेंटेन करता है ऑल फंक्शंस को एंड ऑल्सो मेंटेन द इंट्रैक्शन। जितनी एक्टिविटी है, सेल की एक्टिविटी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और उस एक्टिविटी को मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल। फर्स्ट हमारा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, आउटर कवरिंग पार्ट्स ऑफ ए सेल। देखिए कोई भी सेल है, अगर आप ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स इन ऑल सेल्स, मतलब
प्लांट में भी होगा और एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ऑल लिविंग सेल्स एंड इट इज लिविंग पार्ट मेड अप ऑफ ए प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स एंड entry and exit of a substance from surrounding is also maintained by the plasma membrane। और जो ये आउटर पार्ट्स हैं, इन्वायरमेंट्स हैं, इन्वायरमेंट से ये सेपरेट करता है किस चीज को, जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को ये आपको सेपरेट करने का काम करता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ए selectively permeable membrane। This is due to it protects entry and exit। ये entry और exit जो substance है उनको entry और exit को that is prevented by the plasma membrane and maintain the internal inner parts। So it is known as a from external environment। So it is known as a selectively permeable membrane। एंट्री और एग्जिट को इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जितना इसको रिक्वायरमेंट है दैट अमाउंट इज एंटर इनसाइड और जो वेस्ट मटेरियल है या अदर सब्सटेंसेस हैं डू नॉट एंटर्स इन इट। द एंट्री एंड एग्जिट प्रिवेंटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब इसमें आपको और भी आपको आता है कि हाउ ट्रांसपोर्ट द गैसेज एंड द अदर सब्सटेंसेज। ये किस तरह से करते हैं एंट्री और एग्जिट का, तो यहां भी आप ध्यान रखेंगे एक प्रोसेस आता है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ये आपको सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होंगे और गैसियस सब्सटेंसेस में भी होंगे। गैसियस में फास्टर होता है और लिक्विड के लिए हम स्पेशल प्रोसेस कहते हैं जिसको कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको है दिस द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट, और जनरली हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए हमें दिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट, ये हम कहेंगे डिफ्यूजन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन का होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। अब ये कैसे होगा, आपको एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन आपको आउटसाइड से इनसाइड एंटर होता है और ऑक्सीडेशन के बाद आपको शेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इनसाइड क्या होगा, मोर हो जाएंगे और आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, लेसर है, तो इनसाइड टू आउटसाइड। इन दिस वे मूवमेंट्स ऑफ ए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी। क्लियर। तो ये हमारा मूवमेंट्स, इसको हम क्या बताए, डिफ्यूजन। अब एक और क्वेश्चन आपको आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द लिविंग सेल्स, एनिमल और प्लांट सेल केप्ट इन ए सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपको आ जाएगा कि आप मूवमेंट ऑफ ए वाटर फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सेल कब होंगे, when the concentration of a water more in a solution than the सेल से ज्यादा अगर हो वाटर का कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और मूवमेंट क्या होंगे, और वो आपको इनसाइड से सॉल्यूशन टू सेल, और इसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। एंड द सेल स्वेल अप, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, और उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में और सेल के अंदर दोनों में इक्वल होंगे तो नो नेट मूवमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, तो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड आपको आता है, थर्ड कंडीशन होंगे कि अगर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं, यानी वाटर कंसंट्रेशन क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इस केस में मूवमेंट्स ऑफ द वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो ये क्या हो जाएंगे, दैट इज श्रिंकेज, श्रिंकेज इन ए सेल, एंड सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। पहले हमने क्या कहा, एंडोऑस्मोसिस, और ये एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस क्या हो गया, टू टाइप्स, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर। अब इनके बाद, इनको हम एक्सप्लेन करने के बाद हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे आपको रेजिन से, रेजिन क्या होता है, ये किशमिश है, इसको आप वाटर में डाल दो तो क्या देखोगे, ये स्वेल अप हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान एक और चीज रखना है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं, केवल मूवमेंट्स लिविंग सेल्स में होंगे, नॉन लिविंग में ये मूवमेंट्स नहीं होता। यानी जो मूवमेंट्स आपको वाटर का इन आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, ये आपको केवल लिविंग्स में होंगे। अब इसके लिए एक और एक्टिविटी से हम आपको बता रहे हैं, एग है। एग का जो आउटर कवरिंग पार्ट्स है, दैट इज मेड अप ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं, एसिड में डालेंगे, रिमूव हो जाएगा। अब लिविंग सेल्स है, जब इसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा, और उसी को आप जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो श्रिंक होगा। ये जो मूवमेंट्स हुए, जो वाटर का मूवमेंट हो गया आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, ड्यू टू द लिविंग सेल्स। ठीक है। इसी में अगर आपको दिया रखा हो कि बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग को लेकर अगर आप डालते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, नो मूवमेंट्स ऑफ द वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। क्लियर। तो केवल किसमें होगा, लिविंग सेल्स होंगे, इनके अंदर आपको मूवमेंट्स होता है। किसका मूवमेंट होंगे, मूवमेंट्स ऑफ वाटर। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जो सेल है, सेल आपको फ्लेक्सिबल होते हैं। जनरली जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर में जो एनिमल सेल्स हैं, इसके अंदर ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी से आपको क्या बेनिफिट होंगे, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए सेल membranes engulf the food particles present in a surrounding। जैसे अमीबा, आप एग्जाम्पल ले लेंगे, अमीबा आपको engulf the food particles from surrounding and this process is called endocytosis। और एक अदर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, हमारे बॉडी के अंदर जो WBC है, ये भी आपको एंडोसाइटोसिस की तरह ही वर्क करता है। जब हमारे बॉडी में माइक्रोब्स एंटर होते हैं, उसको वह इनगल्फ कर लेता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस। इसका सेल वॉल है, सेल वॉल आपका इज द आउटर कवरिंग पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, मेड अप ऑफ ए सेलुलोज, इट इज नॉन लिविंग पार्ट्स एंड पोरस। क्या होगा, पोरस होते हैं। ठीक है। अगर हम प्लांट सेल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये आपको सेल वॉल उसके शेप को चेंज नहीं होने देता, ये उसके शेप को मेंटेन करता है, फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करता है। और ये जो आपका सभी देखेंगे कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसके सेल ऑर्गेनली जो ऑर्गेनली है, दैट इज श्रिंकेज एंड लॉसेज वाटर, दैट इज मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल। और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। देखिए न्यूक्लियस है कहाँ, ये हमारा ये डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हमारा कई चीजें, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि और कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। सेल की जितनी भी एक्टिविटी है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सो इट इज नोन एज ए
ब्रेन ऑफ ए सेल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, आउटर आपको कवरिंग है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको कहते हैं क्रोमोटिन, और जो डॉट स्ट्रक्चर्स में आपको प्रेजेंट है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इसमें आपको फर्दर जब डिवीजन के लिए आएंगे तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स कंसिस्ट मैक्रोमोलेक्यूल्स दैट इज on the surface of the chromosome that is known as a DNA, deoxyribonucleic acid, ये एसिडिक नेचर का होता है। एंड द सेक्शन ऑफ ए यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ ए DNA that is the gene, and gene governs the character and it governs the traits and transmit from one generation to another generation, यानी continuity of a life that is maintained by the gene, and इसी को हम बोलते हैं genetic information transmit one generation to another। क्लियर। अब इस जीन के बाद आपको देखिए न्यूक्लियस भी टू टाइप्स के, न्यूक्लियस के बेस पर भी हम आपको 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहला होता है कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, ओनली द न्यूक्लियर मटेरियल आर प्रेजेंट दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड, दैट एरिया इज नोन एज न्यूक्लियाइड, और इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो हमारा बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, और जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और इनमें हमें डिफरेंस जनरली हम इसके डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या हो गया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट दैट इज यूकैरियोटिक, एंड द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली आर प्रेजेंट, बट इन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली आर प्रेजेंट। इसका जो साइज है प्रोकैरियोटिक का आपको 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होते हैं, जो आपका यूकैरियोटिक है इसके साइज 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होते हैं, और इसके अंदर होते हैं सिंगल क्रोमोसोम्स। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इसमें आपको मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। जनरली जो क्रोमोसोम्स हैं दैट इज प्रेजेंट इन ए पेयर। तो ये हमारा क्या है, दैट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, और इससे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, और जो जितने अदर ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में आपको प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सभी में क्या प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है न्यूक्लियस के बाद? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको फ्लूइड मटेरियल है प्रेजेंट इनसाइड द सेल अदर देन द एक्सेप्ट न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म consist the bodies, that is cell organelle, cytoplasmic bodies, that is known as cell organelle, and such cell organelle performs the specific function and performs the function, that function is the function of a cell। वही आपको क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए सेल। आपको कुछ मेन ऑर्गेनली हैं, जैसे आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको इस तरह से आपको आएंगे, ये आता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एंड इट इज 2 टाइप्स ऑफ ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट आपका होता है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर क्या होंगे, ये जो डॉट्स हम देते हैं ये होता है आपको राइबोसोम्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, एंड इट्स मेन फंक्शन टू प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन्स। एंड सेकेंड आपको एक और होता है, वो है क्या चीज आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, बट इट प्रोड्यूसेस लिपिड्स। ये क्या बनाता है, लिपिड्स बनाते हैं।
अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क पूरे सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, किसके लिए? बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। एंड इट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टिंग चेन, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम one parts to another parts. It is transported from cytoplasm to the nucleus and इसके बाद आपको ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। इसके अंदर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट प्रेजेंट्स इन ए लिवर एंड डिटॉक्सिफिकेशन हेल्प्स इन ए डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये डिफरेंट फंक्शंस आपको आ जाएंगे। एंड इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प्स इन ए फॉर्मेशन ऑफ ए मेम्ब्रेन, सो इट इज नोन एज ए membrane biogenesis. That process is occurs in a endoplasmic on the surface of a endoplasmic reticulum. ये आपको प्रोड्यूस क्या करेगा? हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स बनाते हैं। ये आपका फंक्शन क्या है? किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का जो आपको मेन फंक्शंस क्या है? ये होता है पैकिंग एंड डिस्पैचिंग। जितने सब्सटेंस आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसाइज करता है, इसको पैकिंग करना और डिस्पैचिंग करना, ये आपका काम है। दैट इज द फंक्शन ऑफ ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये आपको गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस है। ये आप होता है स्टक होते हैं एक दूसरे के ऊपर, आपको स्टक होंगे और इसमें सिस्ट बनते हैं और ये पैकिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही अदर फंक्शन इसके हैं, ये आपको सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाता है। साथ ही ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन जो आपको लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करना। दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ ए हेल्प्स इन ए फॉर्मेशन ऑफ ए लाइसोसोम। दैट इज द फंक्शन ऑफ ए गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आपको सिंगल, ये आपको सिंगल मेम्ब्रेन्स, इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं जिसको ये पावरफुल एंजाइम हम कहेंगे। दैट पावरफुल एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करते हैं और इस पावरफुल एंजाइम के कारण से ही इसका काम, ये आपको डिस्पोजल सिस्टम, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल है, दैट इज डाइजेस्टेड, फॉरेन मटेरियल चीज एंटर इनटू द सेल, दैट इज डाइजेस्टेड बाय ब्रस्टिंग द लाइसोसोम्स एंड इट इज आल्सो नोन एज ए सुसाइड बैग। इसको सुसाइड बैग क्यों कहेंगे? ये जब वर्किंग नहीं होते, सेल की जो ऑर्गेनली है, अदर ऑर्गेनली है, पुअरली वर्किंग हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये आपको ब्रस्ट होता है। ब्रस्ट होकर इसकी जो एंजाइम है वो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। सो इट इज नोन एज ए सुसाइडल बैग। इसको हम क्या कह लेंगे? सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका इसका शेप आपको, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये फोल्डेड होते हैं, 2 लेयर्स होता है। जो इनवर्ड्स हैं, जो इनर फोल्डेड होते हैं, दैट प्रोवाइड्स द मोर सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेशन एंड इट्स मेन फंक्शन इज कॉल्ड नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और इट इज सेमी या आपको ऑटोनोमस बिकॉज इट कंसिस्ट द ओन डीएनए। ये आपको अपना प्रोटीन भी, अपना राइबोसोम्स भी प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं, अपना इसका डीएनए भी इसके अपने होते हैं और ये अपने आप को सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। इसको हम पावर हाउस क्यों कहते हैं? इसके लिए हम 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज
occurs in a mitochondria and release energy in the form of heat. That energy is stored in the form of ATP, and such energy utilized for the other activity of a body, and also helps in a synthesis of a material. So it is known as a powerhouse of the cell. और ये आपका क्या हो गया, ऑटोनोमिक बॉडी है, ये आपका क्या हो जाता है, खुद बनाता है, खुद अपने क्रोमोसोम्स भी इसके पास राइबोसोम्स हैं, जिससे सिंथेसिस क्या करेगा, प्रोटीन, और वो अपना डीएनए बनाता है। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको आता है नेक्स्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का काम क्या है, ये ओनली प्रेजेंट्स इन ए प्लांट सेल। किसमें प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें मेन ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं इसको 2 पार्ट्स में, जैसे हम क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, हम 3 पार्ट्स भी कह लेते हैं। लेकिन इसमें आपको जनरली जो ल्यूकोप्लास्ट और जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं उसको हम क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट हो गया, दैट इज प्रेजेंट्स इन ए लीफ, ग्रीन पार्ट्स, and consists the green pigment that is called chlorophyll and helps in photosynthesis prepare own food, and due to this it is also known as a kitchen of the cell. इसको हम क्या बोलेंगे, kitchen of the cell. क्लियर। अब ये आपको इसका जो पार्ट्स होते हैं, नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पर स्टोर्ड होता है जो फूड मटेरियल सिंथेसाइज हुए, that substances are stored and next chromoplast है। क्रोमोप्लास्ट आपको कलर्ड पार्ट्स होते हैं, और ये कलर्ड पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, दिस प्रेजेंट इन फ्लावर। जैसे फ्लावर के अंदर आपको जो कलर्स हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच सेल, एंड हेयर आल्सो हेल्प्स इन ए स्टोरेज। क्लियर। तो ये हमारा प्लास्टिड्स भी आपको ठीक ऑटोनोमिक बॉडी है, इस तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास भी ओन राइबोसोम्स होते हैं, अपने राइबोसोम्स होते हैं, ओन डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और ये आपको मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट एंड ओनली प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल, हेल्प्स इन ए फोटोसिंथेसिस, सो इट इज नोन एज ए किचन ऑफ द सेल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए वैक्यूल्स आपको प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों में होते हैं, प्लांट सेल में भी होंगे और एनिमल सेल में होंगे। प्लांट सेल में ये लार्ज पार्ट, यानी आपको 50 से लेकर 90% जो पार्ट्स हैं सेल के, दैट इज कवर्ड बाय द वैक्यूल्स। ये लार्ज साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड इट कंसिस्ट द फ्लूइड मटेरियल्स एंड मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट मेंटेन द शेप ऑफ ए प्लांट सेल्स and it dissolve the substances which is prepared, जो substance आपको prepare हुआ उनको dissolve करना and maintain करना, that is the function of a vacuoles। तो आप substance आपको आ गया, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, सभी substance को dissolve करके और स्टोर करना, that is the function, and it provides the strength, ये rigidity that it provides by the vacuoles present in a plant cell. In an animal cell presents in a smaller size and many vacuoles are present. आपको कुछ अलग भी आ जाता है, जैसे अमीबा के अंदर है एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अभी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है कि डाइजेशन के समय डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको थ्रोन आउटसाइड द breaking and thrown into the environment. In this way removal of a waste material. ठीक है। अब आपको आता है नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है उसमें आता है डिवीजन, और ये डिवीजन हमारा क्या है, ये है सेल डिवीजन आपको 2 टाइप्स के होते हैं सेल डिवीजन, माइटोसिस और म्यूटेट। माइटोसिस में 1 cell divide to form the 2 daughter cells, and each daughter cells having number of chromosomes, same number of chromosomes. So it is known as a equational division, and it occurs in all body cells.
जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये ग्रोथ हमारा होता है ड्यू टू माइटोसिस प्रोसेस। और दूसरा आपको डिवीजन है, ये हमारा आता है वैसे न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर। न्यूक्लियर डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस में it occurs only in a sex cell, and one cell divide to form the 4 daughter cells, and each daughter cells having number of chromosomes exactly half of the number of chromosomes present in a cells. And its example, इसका example आपको क्या होगा? Its example is gametes, and it is known as a reductional division. इसको क्या बोलेंगे? Reductional division. क्लियर? तो इस तरह से आपको कंप्लीट चैप्टर को एक बार हमने उसके मेन पॉइंट्स को लिया है और एक्सप्लेन किए हैं। आप भी प्रयास करेंगे एग्जाम्स के लिए उस तरह से तैयार करें कि एक साथ आप थोरो हर एक पॉइंट को टच कर लो और उनके बारे में लिख सकते हैं। क्लियर? ओके।